legal point which concerns DDCA. Everything is on his tips. On my right is Mr. Pool Chand. He's a celebrated coach, great coach. He's running 2, 3 academies, and most of his guys, a lot of his guys are playing in IPL as well as in UP Ranji Trophy. And one of his guys, the under 16 boy, got selected in Delhi yesterday. So Chindal, he is a reputed businessman and a lifetime member of DDCA. And we are likely to contest election this coming, if DDCA holds election. So we are a team which will be contesting for the post of directors. So this is what I wanted to tell you about us. So Mr. Datta will brief something about what we have called you up for, the purpose of calling you up. Please. Yeah. Essentially, this meet is about the violations of law by the DDCA. DDCA is a company, and under the Companies Act, the DDCA is supposed to hold annual general meeting before 30th of September every year and place before its members the financial details, the annual accounts, so as to say. Now, DDCA has defaulted in holding the annual general meeting on the 30th of September, and we are approaching another 3 months, that is almost 30th of December. Now, if a company doesn't hold the AGM within the stipulated time, it has defaulted, and if the company defaults, then there are legal complications. Now, 31st of December is the last date, but in a company like DDCA, to hold an AGM requires at least 45 days, because you have to settle your accounts, you have to circulate that account to all the members. There are 4,200 members in DDCA. It takes around 21 days is the notice period. Before that, you can hold an AGM. 3 days is required to send the annual budget, the finances to all the members through speed post. So it is around 25, 26 days. Then, as per Supreme Court judgment, you have to appoint an election officer who is an independent body. That body has to be appointed before 30th of the stipulated date. So even if we take the 31st December to be the cutoff date, still DDCA is nowhere in picture to hold the AGM and the elections. Now, what is the reason? We have come here, we have joined here to expose the reasons why it is so. What is the reason why the DDCA has committed this default? And we would not be saying from our mouth. We have already placed documents. The honorary secretary of the DDCA has written mails to his fellow board of directors exposing the financial bungling, the fraud which has happened in the DDCA. There are two financial frauds. One is regarding 36 crores of tender. The second is the tickets purchased from Paytm fraudulently. So these are the two reasons why the accounts could not be settled in time, and that is the reason why the AGM was not held. The AGM is not being held in contempt of the Supreme Court judgment. The Supreme Court judgment under the Lodha Committee judgment says 30th September is the cutoff date. You cannot extend it beyond 30th September. Now, as latest as 22nd of November, the Lokpal, that is an ombudsman appointed by the Supreme Court for DDCA, Justice Indu Malhotra, 21st of November, she has also passed a direction to the DDCA that you please hold AGM on time, but still AGM has not been held. So our purpose of meeting here is to give you the entire detail as to why the AGM was not held. We have circulated documents. These are mails written by the secretary to his fellow office bearers. He himself raises question that I will not sign the accounts because these are the accounts frauds which has happened. And till the time the account is not settled, AGM cannot take place. Because in the AGM, you have to circulate the final accounts before the members. So the first thing which we would like to impress upon here to all of you
is the reason why the AGM could not be held. Second is the financial bungling. Third is the contempt, the direct contempt of the Supreme Court judgment and the Ombudsman's judgment. These are the contempt which has been done by the DDCA. Now, what is the fallout? The fallout of this contempt is like in other sports bodies, like in Hockey India, Indian Olympic Association, there were administrators appointed. Now, DDCA is on the verge of a situation where, because of this default, because of this blatant default, there is all likelihood that there will be an administrator to be appointed in DDCA, and it will be a dark day for DDCA. We, as members of the DDCA, as well wishers of DDCA, we do not want that. We want the DDCA should comply law and hold AGM, and whatever is required under the law, that should be there, be complied with. So, in nutshell, it's a death of democracy, so as to say, now in the DDCA. We are against that. So, we will be holding a dharna to educate the members. The members are not made aware as to what is happening in the DDCA, such sports body. It's a non-profit body. DDCA is a company which is a non-profit body. You get money from the BCCI to spend it, but somebody is accountable. The elected office bearers, the board of directors are accountable. So that accountability, to ensure that accountability, to honor that accountability, you have to comply with law. You have to hold AGMs on time and declare your accounts. If you do not declare your accounts, then you have to come clean. So the mails we have shared with you, it exposes why the AGM and the financial bungling. I hope you have gone through the mail. So it is self-explanatory. It is in great detail. None other than the secretary of the association himself writing. So this is in nutshell why we have joined here. So is it a problem with the accounts only, or is it a problem of bungling? We don't know. As of now, it is very difficult because whatever little information we have is through the mails which has been exchanged by the secretary. Now, this is a self-explanatory mail which says that the accounts could not be settled despite all his best efforts. He is writing to the accounts department that look, these are the issues which need to be decided. 36 crores of tender bungling and the Paytm ticket purchase in the international match. So he is feeling helpless. As a secretary of the association, he is feeling helpless and he has to sign the accounts. So if the accounts are not being signed, then what is the reason? Normally in a company, it's a normal process of finalizing the account. They're hiding. There is something they're hiding. So Can you elaborate on that? What is not beyond the paper that you have circulated? there is definitely more to it what meets the eye. Definitely. So we are seeking inquiry. Before that, if they don't come up with this thing, we cannot hold elections. So this is the reason they're procrastinating, because in fact, they will be finding ways to come out of it. Why should we? We're just exposing them. Now they'll be running from pillar to post to settle the accounts. Because normally and ideally, what should happen in a company, there should be an inquiry which is to be held to unearth the real guilty, who is the guilty. But inquiry not nahi karai. Does this mean that you are asking the president and the secretary to hold an inquiry to the amount that you are figuring out? Obviously. And that too quickly, because we have to hold elections. But because dates are already you are already late behind the date. 30th December. 31st December they have to do. So they are in a tight corner. So they have to find ways. We are trying to expose them, whatever documents we have. So tomorrow we are sitting on dharna for this thing only. So today we wanted to tell you what all has happened, and we would be needing your support to cover that dharna on. So we request you to, so that 4,200 people of DDCA come to know. This is How what are you reaching the 4,200 members? we have sent them mails. We have sent them WhatsApp. A lot of people would be coming tomorrow. And dharna is one of the means through which we'll try to impress upon the members. Look, this is what has happened in DDCA. And we are fortunate enough, for the first time, something has come out of DDCA. Otherwise, it's a closed door, environment. Nothing will come out of DDCA. Even the members don't know. They don't come to know about what is happening, cooking up in the DDCA. The first time
In the history of the DCA, a secretary is writing himself. He's brave enough. Brave enough. उनके आजाद जी ने भी केस फाइल किया था डीडीसी के चेयरमैन की बॉडी के लिए जो इलेक्शन होना था उसके लिए। उसके बाद जब आपका ये नया अपॉइंटमेंट चुनाव हुए लास्ट ईयर, मोहन जेटली जी ने भी जो आपके एफएस बॉडी की जज हैं मल्होत्रा जी, उनको अपॉइंटमेंट किया, यही उन्होंने सजेस्ट किया था। तो फिर ये बात आ कहाँ से रही है कि वो खुद जजमेंट कर रहे हैं, खुद अध्यक्ष भी हैं फिलहाल प्रेजेंट में, और खुद ही एफएस बॉडी के लिए जजमेंट भी कर रहे हैं कि इनको नॉमिनेट किया जाए, उनको किया गया। ठीक है, तो अब ये बात अटक कहाँ रही है? फिर ये चीजें क्यों अटक रही है? यही क्या तो बदले की बात है या कुछ और चीज है? यही तो हम समझना चाह रहे हैं। मेंबर तो आपके भी पूरे भी तो नहीं है ना सर अभी। देखिए, मैंने क्या कहा कि एजीएम क्यों नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है कि एजीएम ये कराना नहीं चाहते थे, ये चाहते थे। ये आज ऐसी सिचुएशन में आके फंस गए हैं बिकॉज ऑफ दिस बंगलिंग और एक्सपोजिशन जो एक्सपोज हो गया है, कि आज ये एक टाइट कॉर्नर में आके फंस गए हैं। अब आप सुनिए मेरे से, 25 लाख की टिकटें पेटीएम से मैं ले आऊं, सर वो तो केस चल रहा है, वो केस नहीं चल रहा। कोई केस उन्होंने नहीं, नोटिस कोई किया, केस नहीं है। केस नहीं चल रहा। केस फाइल हुआ हो सर, कहाँ पे, कौन से कोर्ट में? उसका क्राइम ब्रांच ने केस फाइल किया चीज तो हुआ। अब आप सुनिए मैं बताता हूं। 25 लाख की टिकट किसी ऑफिस बेरर ने ले लिया, एक तो वो ले नहीं सकता वो तो होगी क्योंकि अब वो पैसे 25 लाख जमा नहीं हुए पेटीएम को। पेटीएम पैसा मांगती है अपना, वो पैसा कौन देगा? अगर ये ऑफिस बेरर पैसा देता है तो व्हाइट में देना पड़ेगा, वो कैसे एक्सप्लेन करेगा? डीडीसीए देती है तो डीडीसीए नहीं दे सकती क्योंकि डीडीसीए टिकट परचेज ही नहीं कर सकती। टिकट परचेज करने का हक डीडीसीए को नहीं है क्योंकि सिर्फ पेटीएम ऑथराइज वो थी वेंडर जिसने आगे टिकट सेल करना था। तो ये कुछ कारण है, ये है फ्रॉड जिसके कारण ये गाड़ी अटक गई। आप जिनके नाम ले रहे हैं उनके सारे अच्छे मतलब नियत के बावजूद किसी 2-4 लोगों के चक्कर में ये गाड़ी अटक गई। लेकिन इस गाड़ी को चलाना तो पड़ेगा ना। अगर आप इस गाड़ी को नहीं चलाते हैं, इंक्वायरी नहीं करते हैं, और खराब होती जाएगी, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो जाएगा। इसलिए हम ये चाहते हैं हमारे धरना के थ्रू कि इसका हल निकाला जाए, सेटल किया जाए जल्दी से टेंडर जल्दी। का मामला तो पिछले साल भी था, उसमें टेंडर तो पिछले साल का ही चल रहा है। लेकिन वो कागज सामने नहीं आए थे। अब ये पहली बार कागज है। अभी तो एजीएम हुई थी, अभी तो चुनाव हुआ ही था ना सर। फिर कागज नहीं थे ना कुछ। कागज नहीं थे ना। वो देखो, अब कुछ एलिगेशन फ्लाई करते हैं तो कोई अलग बात है, लेकिन आज कागज हैं। आज पहली बार कागज है सामने और षड्यंत्र भी सामने दिख रहा है। और पिछली बार इन्होंने एजीएम कर लिया था ना, अब क्यों नहीं कर रहे? अब क्यों नहीं कर रहे? देयर हैज टू बी सम रीजन ना, कोई ना कोई कारण तो होगा जो कोर्ट नहीं का कर रहे। फैसला, लोकपाल का फैसला उसके सुप्रीम बाद कोर्ट नहीं ने कर कह पा दिया, लोकपाल ने कह दिया, ओम्बड्समैन अपने शोर में जाम कह रही है कि करो करो, और फिर भी इट हैज टू हैपन। उन्होंने लिखा ऑर्डर में इट हैज टू हैपन बिफोर 31st ऑफ दिसंबर, और नहीं कर रहे तो देयर हैज टू बी सम रीजन। बिल्कुल होगा ना, कंटेम्प्ट होगा। अब नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे तो 31st तक तो अल्टीमेटली फाइनल तो वही जाकर गाड़ी रुकेगी। 31st से पहले तो नहीं जा सकता ना कोई, नोबडी कैन गो टू द कोर्ट। सर आपका ये कॉलम है और लीगल एडवाइजर जो फॉलो करता है जो ओरिजिनल मिनिमम को। अब आप देखिए सेक्रेटरी साहब क्या लिख रहे हैं। सेक्रेटरी साहब को मिनट बुक तक नहीं दिए जा रहे हैं। वो भी नहीं है। अब आप सोचिए, तो ये सर साल में कितनी मीटिंग होती है फिर इस बॉडी के हिसाब से जो अफेक्ट नहीं टेंडर कमेटी की भी मीटिंग होती होगी, मैच के लिए मैच होल्ड करने के लिए कमेटी होगी इसकी मीटिंग, एपेक्स काउंसिल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग तो होती है, हर मीटिंग महीने तो होती है। कंपनी है, कंपनी को तो अपने प्रोसेस से चलना है। लेकिन सेक्रेटरी कस्टोडियन है ऑल रिकॉर्ड्स का एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, और उसको दिखाया भी नहीं जाता। उसको दिखाया नहीं जा रहा। आप समझ रहे सिचुएशन कहाँ जाके फंस चुकी है गाड़ी, कि सेक्रेटरी के से भी आप शेयर नहीं कर रहे हैं। So you feel pity for the secretary, or you feel that secretary is being victimized? He is a board secretary. Why should you feel pity about him? He is the one who has taken the courage to He's brave enough to- brave enough. We are thankful to him. Otherwise, किसी को पता नहीं As चलता। members, we are thankful to him. Members of DDCA. बीसीसीआई और पीटीसी का जो नॉर्म्स है उसमें क्या डिफरेंस है? वहाँ तो 3 साल की अगर बॉडी जो भी है बनती है उधर से, तो क्या वो देखिए बीसीसीआई, सबसे पहली बात तो बीसीसीआई एक सोसाइटी है, सोसाइटी ये भी वहाँ कंपनी नहीं, है, ये अच्छा कंपनी कंपनी है। है। यहाँ पे ये कंपनी है, सेक्शन 8 की कंपनी है हमारी। ये नॉन प्रॉफिट कंपनी है, वो सोसाइटी है। बीसीसीआई तमिलनाडु में रजिस्टर्ड सोसाइटी है। डीडीसीए कंपनी है, आरओसी में। इस कंपनी के अपने नियम कायदे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट
कहती है कि आप इंडिपेंडेंट, स्वायत्ता दी गई है अंडर द जजमेंट कि आप कंपनी है तो कंपनी चलाइए, बट मोटे तौर पर जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की उसको मानना है। तो मोटे तौर पे गाइडलाइन क्या है? आप 30 सितंबर तक एजीएम करेंगे, आप अकाउंट्स 30 सितंबर तक घोषित करेंगे। ये गाइडलाइंस है बेसिक। 70 साल से ऊपर वाला कोई भी डायरेक्टर या किसी पद पे नहीं रह सकता। 9 साल से ऊपर किसी पद पे वो नहीं रहेगा। ये मोटे तौर पे ये गाइडलाइंस थी। अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट की जहां तक बात आती है बीसीसीआई के सिलसिले में, बीसीसीआई ने अपने टाइम सिलेक्शन कर लिया, एजीएम कर लिया, डीडीसी ने क्यों नहीं किया? नहीं, क्यों भी क्या वो लॉ कानून संगत तो काम हुआ ना? आपको भी पता क्या हुआ, मगर हुआ। कुछ लोग नाराज होंगे, वो अलग बात है, पर्सनल विम्स तो ठीक है, लेकिन पेपर यहाँ कंप्लीट तो कर आप ले कुछ भी नहीं कर रहे। क्या हुआ था? मैं बता दो, 3 महीने की एक्सटेंशन ले सकते हैं या आरओसी से फॉर सम रीजन, एंड द रीजन दिस टाइम दे गेव वाज कि 11 अक्टूबर को इंडिया साउथ अफ्रीका मैच है, इसलिए 3 महीने का एक्सटेंशन ले ली। अब वो 3 महीने की एक्सटेंशन जो है वो 31 दिसंबर तक खत्म हो जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली जो ओम्बड्समैन है उन्होंने ऑर्डर किया कि 3 महीने की आपको एक्सटेंशन मिल गई थी, अब 31 दिसंबर से आगे नहीं जाएंगे और 31 दिसंबर से पहले आपको इलेक्शन एजीएम करनी है, उसमें इलेक्शन होगा। पर कई बुधवार निकल जाएगी, कई बुधवार निकल जाएगी। देखिए किसी मीटिंग करने से पहले आपको नोटिस देना पड़ता है 7 दिन का। कहीं किस हाँ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी, कोई नहीं। कौन सी मीटिंग है? अगर होगी तो पता नहीं कैसे होगी। होगी तो अच्छा है, हमारे डीडीसी के लिए अच्छा है, इनके आँख खुल जाए और कर ले, अच्छा है, बेटर सेंस प्रिवेल, अच्छा कर ले तो अच्छा है। हम तो चाहते हैं कि रिजॉल्व हो। हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि हो, हम इसलिए खराब हो, एसोसिएशन का नाम खराब ना हो, क्रिकेट का नाम बदनाम ना हो, हम तो चाहते हैं, सब कुछ स्मूथली चले। और डीडीसीए में क्या है कि 5 डायरेक्टर्स, जो 7 डायरेक्टर्स होते हैं इलेक्टेड, 5 जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनकी 3 साल की टर्म होती है, जो आप पूछ रहे थे, और जो 7 डायरेक्टर्स हैं उनका एवरी ईयर बाय रोटेशन होता है, उसमें से 4 जो होंगे उनका रोटेशन से इलेक्शन होगा, तो उसके लिए ड्रॉ ऑफ लॉट्स होता है। अब इन्होंने वो भी नहीं किया, तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि 1 महीने का प्रोसीजर है पूरा, तो दे मस्ट स्टार्ट बाय 30 नवंबर। अगर नहीं करते तो दे विल नॉट बी एबल टू, इज द लास्ट डे, तो टाइम इज रनिंग आउट, तो दैट इज व्हाई हम बोल रहे हैं कि जल्दी से करो, अदरवाइज एक एजेंट को कंडक्ट करने के लिए 40-45 दिन का टाइम चाहिए होता है, उसमें बहुत सारी चीजें। एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होती, एजीएम नहीं होती ना, शॉर्ट नोटिस। एनुअल जनरल मीटिंग तो साल में एक दिन है, आपको पहले से पता है, तो उसमें इमरजेंसी आप नहीं कोई प्ली ले सकते। इमरजेंट मीटिंग इसकी तो हो सकती है, एपेक्स काउंसिल की मीटिंग तो हो सकती है इमरजेंट, मगर एजीएम तो टाइम चाहिए, नोटिस है, हर मेंबर को नोटिस बेनिफिट है, वो तो पहले कानून में लिखा हुआ कि आपने करना है, आपको तो 1 साल पहले से पता है, उसको डिले करने का आपके पास कोई प्ली नहीं है। यदि एजीएम होगा तो क्या आप ये जो लास्ट पॉइंट है आपने जो लिखा है उसके लिए आप पुश करेंगे? लास्ट पॉइंट कौन सा? क्लब्स के लिए बिल्कुल जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वो उनका राइट्स बनता है क्लब्स का, हर जगह है, हर क्लब को क्या नाम है वोटिंग राइट्स है हर जगह है। जो डीडीसी में पैसा आता था क्रिकेट के लिए आता है, आप क्रिकेट को क्लब को ही प्रमोट नहीं करेंगे। सारे स्टेट्स क्लब में ये जी, आप कलकत्ता देख लें, बॉम्बे देख लें, हर जगह है। लोधा कमेटी ने भी कहा कि क्लब तो ये बेडरॉक है, क्रिकेट की बेडरॉक क्लब्स हैं, यहाँ से ही टैलेंट आते हैं, ये कोई सोशल क्लब नहीं है। तो इससे पहले आप लोगों ने इस बात को क्यों नहीं उठाया? जब जागो हुआ तब भी सवेरा, जब जागो हुआ तभी सवेरा, क्योंकि पहले नहीं किया इसलिए आज भी नहीं करें, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं लगाया जाए कि आप इलेक्शन के लिए खड़े होंगे, इसलिए ये अभी से नहीं, ये हमारे मैनिफेस्टो में लास्ट ईयर भी था, उससे 2018 से हम बोल रहे हैं। क्लब्स तो बहुत सालों से मांग रहे हैं, 2018 से मांग रहे हैं, कमेटी 2018 में आई जजमेंट, तब से हम मांग रहे उसके हैं, बाद से मांग रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये क्रिकेट ही डीडीसी को चलाती है, क्रिकेट के लिए ही सब कुछ होता है, और क्लब्स जो सेक्रेटरीज हैं या क्लब्स के जो भी नुमाइंदे हैं उनको एंट्री तक नहीं दी जाती है डीडीसी के अंदर, उनको कोई फैसिलिटी यूज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी विडंबना है डीडीसी की कि जो क्रिकेट है, जो क्लब क्रिकेट चलाते हैं, क्रिकेटर को प्रमोट करते हैं, इतने प्लेयर्स बनाते हैं, उसकी वजह से डीडीसी चलता है, और उन क्लब के जो सेक्रेटरीज हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको डीडीसी में आना भी अलाउ नहीं है अंदर, बिना उनके कोई कार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हाँ सही बात है, नहीं मिलता, नहीं बुला सकते।
हम सब बैठेंगे और उसके अलावा मेंबर्स आएंगे। फ्रॉम 10 to 5 है, अपनी कन्वीनियंस पे कि हर हम किसी को तंग नहीं करना चाहते, अपनी अपनी कन्वीनियंस पे लोग आएंगे। उसमें जो पुराने डायरेक्टर्स भी हैं, जॉइंट भी आएंगे। सेक्रेटरीज वगैरह हैं जो पहले रह चुके हैं डीडीसी के, वो भी उनमें वो आएंगे। भी बहुत सारे आएंगे उसमें से। अभी तक हमारे पास कंफर्मेशन आ चुकी है, करीब 300-350 मेंबर्स आएंगे थ्रू आउट द डे। थ्रू आउट द डे। कोई सुबह ब्रेकफास्ट में आ जाए, कोई लंच में आ जाए, कोई इवनिंग स्नैक्स। और आप भी वेलकम है, प्लीज वेलकम आप आइए फॉर ऑल द मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच एंड टी। जी सर, किसी को वी डोंट नीड टू इन्फॉर्म एनीबॉडी। हमने सांकेतिक है। हमने दिल्ली पुलिस से परमिशन ले ली है, विच वाज रिक्वायर्ड। बाकी हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं। अपने मेंबर्स को हम बता रहे हैं, डीडीसी के हम तो गांधीवादी तरीके से सांकेतिक धरना करेंगे। हमने किसी से झगड़ना नहीं, किसी से लड़ने के लिए नहीं बैठे हम चुपचाप पीसफुल। कहने का मतलब था, आर यू गिविंग ए मेमोरेंडम टू द प्रेसिडेंट, No, the no, secretary no, for why you are holding the धरना and the concern that you have? नो वो तो वी आपकी तरफ से चला ही जाएगा। वो तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसकी आपकी तरफ से चला ही जाएगा, उनको सब पता लग ही जाएगा, तो उसकी तो कोई जरूरत भी नहीं है देने की। अदरवाइज हमने हमको उनको ब्लैकमेल नहीं कर रहे, हम अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट। पीसफुल प्रोटेस्ट सिट ऑन करना है। सेफ क्रिकेट, सेफ डीडीसी। हाँ मेंबर्स ही, आउटसाइडर कोई नहीं आएगा। उनका मतलब ही क्लब्स के जो 2 हैं वो भी लेंगे उसमें। दिल्ली में एफिलिएटेड क्लब 80 एफिलिएटेड क्लब्स हैं, 81 एफिलिएटेड क्लब हैं। उन 81 प्राइवेट एफिलिएटेड क्लब्स की ही मेंबरशिप की बात है, सिर्फ केवल 81। इट वोंट कॉस्ट एनीथिंग। अगर आप डीडी से चाहे तो उनको सब कुछ दे सकते हैं। उनको हम मेंबरशिप क्यों नहीं देते? उनको मेंबरशिप दे, वोटिंग राइट दें, उनको नहीं देते। जबकि सब स्टेट्स में है, हर स्टेट के अंदर, हर स्टेट में। और जबकि क्रिकेट जो चलती है वो क्लब से ही चलती है। इवन विराट कोहली भी खेला तो क्लब से खेला, शिखर धवन खेला, ऋषभ, कोई भी खेला, पहले क्लब खेल के इंडिया खेले ना। तो क्लब से तो आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और करना चाहिए। किसी को किसको? किसी को भी नहीं, किसी किसी को भी नहीं है, को भी नहीं है, किसी भी सॉनेट से खेले हुए हैं। किसी को भी नहीं है, किसी भी क्लब को नहीं। और यहाँ के आर्टिकल्स में जो संविधान है वो कहता है डीडीसी की कि किसी भी प्लेयर को, विराट कोहली को भी अगर दिल्ली टीम में सिलेक्शन होना है तो इट हैज टू कम क्लब के थ्रू होगा। लीग खेलेगा, आउटसाइड द क्लब कोई नहीं आ सकता, चाहे कोई भी हो जाए। आपने भी देखा होगा 16-19 की जो लीग हुई है उसकी परफॉर्मेंस के आधार पे ही सारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, और वही क्राइटेरिया है कि क्लबों से बच्चे आए हैं, क्लबों की टीमें आई हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट करा है, उनके मैचेज हुए हैं, देन उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ है। तो हमें क्लब्स को तो जिंदा रखना है और ना। उसके बावजूद भी क्लबों के लिए कोई कुछ भी नहीं है। किसी भी क्लब को कोई ऐसा नो, हाँ, क्योंकि उनको मेंबरशिप नहीं दी गई है ना, तो एंट्री मेंबर्स के लिए है, तो क्लब इज नॉट अ मेंबर, तो इसलिए क्लब मांग रहे हैं कि हमें मेंबरशिप का एक वोटिंग राइट दे दो, एक कार्ड बना दो, कुछ कर दो। डीडीसी के साथ डायरेक्ट एसोसिएटेड होंगे। अभी तो फिलहाल बैठेंगे और होपफुली बेटर सेंस विल प्रिवेल और ये काम करेंगे ठीक। अभी तक तो हमारा यही एजीएम कॉल करेंगे और थिंग्स विल रन स्मूथली। दिस इज व्हाट वी आर होपिंग एंड प्रेइंग। Is this the first time that this AGM postponement has happened, and which is leading to the possible appointment of ombudsman, लोधा कमेटी of administrator? लोधा जजमेंट के बाद ये पहला वाक्य है। 18 के बाद लोधा जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद कभी भी ये किसी एसोसिएशन को हिम्मत नहीं हुई कि वो इस तरह की वो दिखाए गो अगेंस्ट द लॉ। अगेंस्ट द लॉ। ये पहली बार हुआ है, तो वो कारण हम बता रहे हैं कि क्यों हो रहा है। सेक्शन 8 की कंपनी है। सेक्शन 8 की कंपनी अब 13 हो गया सेक्शन, वो सेक्शन 13 कंपनीज एक्ट में, उसके अंदर जो चैरिटेबल बॉडीज होती है, नॉन प्रॉफिट बॉडीज हैं, उनको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज रजिस्ट्रेशन देती है एज ए कंपनी। वो नॉन प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट शो नहीं कर सकते, वो नॉन प्रॉफिट है, चैरिटेबल कहते हैं उसको। जैसे स्पोर्ट्स बॉडीज हो गई और कोई लिटरेरी बॉडी हो गई, कोई हॉस्पिटल, हाँ, तो उस तरह के बॉडीज को रजिस्ट्रेशन मिलती है सेक्शन 13 के अंदर। लेकिन उनको कानून तो मानना है, आपको एजीएम करना है, अकाउंट्स अपने डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप तो नॉन प्रॉफिट हो, आपके पास बीसीसीआई से पैसा आया, आपने खर्च कर दिया, लेकिन आपने छुपाने के लिए जवाबदेही कहाँ है? छुपाने के लिए होना ही नहीं चाहिए आपके पास, तो बैलेंस शीट तो बनानी है उन्हें। क्योंकि इनकी तो बता दीजिए आपका क्या अनुमानित प्रॉब्लम क्या है, क्या हो सकता है, इसके पीछे की राज क्या है?
यही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे अभी 1.5 घंटे से ये तो बता था आपको। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें पता होता तो हम जरूर चीख के बता रहे होते आपको। इसी में तो आपकी मदद चाहिए कि पता करिए कि है क्या। किसका? अभी तक नहीं है मॉम। वो नॉन कॉपरेशन। हमने मेल नहीं डाली। इंटरनल मेल है। ये तो इंटरनल सेक्रेटरी ने डाला। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में आपस में हमने कोई इन्फॉर्मेशन इंटरनल डीडीसीए की जो गवर्निंग बॉडी है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो जो टेस्ट मैच होगा उनके उसका बीच। क्या होगा? पोटेंशियल टेस्ट मैच इन दिल्ली। होगा, जरूर होगा। देखो क्रिकेट को तो हम नहीं चाहते कोई नुकसान हो। क्रिकेट तो होनी चाहिए क्रिकेट और होनी चाहिए। क्रिकेट से तो हम सब कुछ टेस्ट मैच आ रहा है। हाँ, बहुत दिनों बाद, मार्च में आया। कई हजार साल बाद। एक मिनट का 8 साल बाद आया। आना चाहिए। दिस इज आवर पर्पस। देखिए, मेंबर्स को पता चलेगा, अदरवाइज मेंबर्स को पता ही नहीं है ये बंद दरवाजों में क्या हो रहा है अंदर। तो ये हम इसलिए आपसे भी हम मदद मांग रहे हैं कि आप भी अगर इस बात को सामने रखेंगे प्रेस के द्वारा, अगर ये सामने आएगा तो मेंबर्स को पता चलेगा, क्योंकि मेंबर्स का भी हक है, उनको भी पता चलना चाहिए कि इन पैसों का क्या, क्रिकेट के पैसों का क्या हो रहा है। सर, जो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें अदर देन मीडिया, तो वो कौन लोग होंगे? मेंबर्स उसके अलावा और कोई? और किसके अलावा नहीं। देयर आर 4200 मेंबर्स, 4200 मेंबर है डीडीसी के। उसकी आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है कि कौन कौन? हाँ, 4200 की तो लिस्ट है। हमने उनको अप्रोच किया है, हमने फोन करके उनको बताया है कि ऐसे ऐसे हालात हैं, तो उन्होंने कुछ लोग ने कंफर्मेशन दी है कि हम आएंगे, सपोर्ट करेंगे। सर, ये कहाँ पर हुआ? गेट के बाहर? डीडीसी के बाहर। 5 नंबर गेट। और उसमें जो पहले पुराने पदाधिकारी रहे हैं डीडीसी में, जो जैसे कि सेक्रेटरी हैं या जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह हैं, वो भी उसमें आ रहे हैं, वो भी मेंबर भी हैं और वो पहले यहाँ रह चुके हैं, और एक्स क्रिकेटर भी है वो। एक्स क्रिकेटर भी हैं वो। तो वो आएंगे सब। फॉर्मर ऑफिस बियरर्स, तो सारे साथ जुड़ेंगे। नहीं, ये लड़ाई नहीं है। ये देखिए, ये लड़ाई कोई नहीं लड़ाई नहीं है। आप देखो, इस साल कोई लड़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं। हम कोई जवाब नहीं। हम ये कहते हैं कि इसको क्लियर करो और इलेक्शन कराओ, एजीएम करो। हम सिर्फ ये कहते हैं फॉलो द लैंड ऑफ। नहीं, हम होपफुल हैं। देखिए, हम होपफुल हैं। हम किसी के सिर नहीं फाड़ रहे, हम तो पीसफुल। तो आपका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का और इंफॉर्मेशन पहुंचाने का यही है कि इलेक्शन एजीएम हो, अकाउंट्स एजीएम में रखे Settle हो। जाए, और जब एजीएम होता है एज पर सुप्रीम कोर्ट, उसी दिन इलेक्शन भी होने हैं। तो दिस इज द तो प्रोसेस। सारी चीज सेटल हो जाएगा उसी के अंदर। और स्मूथ सेलिंग हो, स्मूथली चले, फंक्शनिंग हो ऑफ डीडीसी। हम कंपनी लॉ को क्यों वायलेट करें, सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट क्यों करें, बदनामी डीडीसी की क्यों? एंड वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट कि भाई हम कुछ हो रहा था, हमारे सामने गलत हो रहा था, हम चुप रहे। सो वी डोंट वांट टू फॉलो इन दैट कैटेगरी कि जिनको पता था फिर भी चुप रहे। आप क्यों ऐसा किया? एजीएम डिक्लेयर कर देंगे, सारा कुछ रिजॉल्व हो खत्म हो जाएगा, जाएगा। ऑटोमेटिकली सब कुछ रिजॉल्व हो वी नॉट आस्किंग फॉर स्काई। 2018 से अभी तक नहीं हुआ ये। नहीं हुआ। हुआ। हर साल होता है हर ना, साल तभी होता तो है। इस वक्त क्यों नहीं एनुअल हुआ? जनरल मीटिंग का 30 मतलब हर सितंबर साल। तक होना होता है। तो उम्मीद है कि वो जाएगा। तो 30 सितंबर तक होना चाहिए था, नहीं किया। अब 31 दिसंबर, 31 दिसंबर क्योंकि इन्होंने एक एक्सटेंशन ली 3 मंथ्स की। एक्सटेंशन ले ली। हाँ, हम अब अगर आजकल में नहीं करते हैं तो वो टाइम नहीं बचा ना। टाइम नहीं बचा, फिर आप नहीं कर सकते। पहले करना पड़ता हाँ, हाँ, इट्स अ प्रोसीजर। प्रोसीजर है, कंपनी एक्ट में प्रोसीजर है कि आपने अपने मेंबर्स को इतने दिन पहले इत्तिला देनी है, इतने दिन पहले अकाउंट सबमिट करना है, Set format वो of सारा days है। फॉर्मेट है, उसके टाइम फ्रेम दिए हुए हैं। So, सुप्रीम बहुत कोर्ट ने भी close दिया आ है रहे कि हैं। 30 दिन पहले आप इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करोगे जो एजीएम कंडक्ट करेगा। तो बोर्ड की मीटिंग ही नहीं हुई, पहले बोर्ड की सर, अभी कुछ दिनों में उनको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आजकल 2 दिन का टाइम बच गया। तो हम इसीलिए कह रहे हैं टाइम इज रनिंग आउट। हमने हमने बोला। अपने तरीके से सब कुछ किया है। बोला और हमने उनकी मजबूरी क्या है वो भी आपको आप तक हमने शेयर कर दिया। उनकी वो मजबूरी अभी तक तो ये कह रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा, वो कह रहे हैं हम करने वाले हैं बट दे नॉट डूइंग इट। और ये 3-4 डेट्स दे चुके हैं हमें। नहीं, वजह जो डिले होने की वजह तो हमने बता दिया। ये मेल्स जो आप पढ़े, ये जो मेल्स इंटरनल मेल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हम भी जानना चाहते हैं कि क्या वजह है। Will you take legal course? दैट वील सी आफ्टर मे बी 15 days 20 days मे बी, जब हमें पता लग जाएगा कि 31 तक नहीं हो पा रही है। क्योंकि अभी टाइम है, अगर 1-2 दिन में एक्शन ले लेंगे तो हो सकती है। लीगल कोर्स से पता क्या होगा, या एडमिनिस्ट्रेटर बैठ जाएगा, जो हम नहीं चाहते। नहीं हम चाहते। सभी के हितों के खिलाफ। वो सबके क्या अगर फायदा होगा एडमिनिस्ट्रेटर बैठ एडमिनिस्ट्रेटर जाएगा। बैठने से? क्रिकेट सफर होगा यहाँ पे, एक लिटिगेशन कॉस्ट डीडीसी पे बर्डन आ जाएगा।
तो उसका कोई फायदा किसी को नहीं है। एंड वी आर प्रेइंग एंड होपिंग बेटर सेंस प्रिवेल और ये काम हो जाए ठीक से। उसमें हमें आप लोगों की सपोर्ट है कि आप भी कुछ लिखेंगे, कोई पढ़ेगा, कुछ होगा तो शायद कुछ हो जाए। आपके सपोर्ट से ये जो मूवमेंट है ये अपने वहाँ तक पहुँचे, सक्सेस मिले, सो दैट कि इन पे भी प्रेशर आएगा कि भाई फटाफट जल्दी करें, एजेंट करके खत्म। थैंक यू।